a total of 65% of SC, ST, and OBC students studying in this university. But for the COVID-19, sir, we would have had a vibrant campus at this time of the year with all the new students joining. However, we are not lagging behind. We have announced our admission tests during September 24 to 26, and we have already planned to start the new session by November 1st, 2020. At present, the University of Hyderabad has over 430 faculty members serving in 12 major schools, 40 departments, and 21 centers. Our faculty have proved time and again, and therefore we are consistently visible in the top slots in any ranking system, be it national or international. In the last 4 years, we have added over 140 new faculty members with faculty recruitments done at regular periodicity. University of Hyderabad has been ranked along with IITs and IISc all the time in the top 10 institutions of higher learning. And the most recent one, sir, you will be very happy, you will be remembering also, under the Atal ranking for the institutions, the ARIA ranking that was released just few days back, we were in the top 10 along with IITs and Institute of Science. We have nurtured the innovation ecosystem through a series of steps that include formation of a Section 8 company called Aspire and house 3 incubators, TBI, Technology Business Incubator, Hive, and BioNest. With more than 40 startups under this Section 8 company, we are encouraging our faculty, students, and also many from this region to join our journey to innovation and entrepreneurship. We are also a technology enabling center of the Department of Science and Technology to help the neighboring institutions in promoting innovation. University of Hyderabad, sir, is known for its quality research contributions that fixed top slots in many ranking systems. University of Hyderabad was supported by UGC under University with Potential for Excellence in 2 different phases and 2 national resource centers, one for chemistry and another one for physics, in addition to the 4 centers for advanced studies and several staff programs, besides the regular support that we always receive from UGC. We are also supported by the Department of Science and Technology, Government of India, under 2 phases under PAS program and fixed programs at level 3, the topmost level, level 2, and all the science departments minimum have level 1 support. And the Department of Biotechnology has given 2nd level support and a build-up to the School of Life Sciences. And similarly, we are recognized, as many of us know, the Advanced Center for Research on High Energy Materials supported by the DRDO is located on our campus, and that is running in the 3rd phase with a wonderful support from DRDO. And we are happy. We are truly, sir, interdisciplinary university as envisioned in the New Education Plan 2020 and have always designed our curricula with flexibility, which was again emphasized in our New Education Policy 2020. We are happy that several of our initiatives are given top priority in the New Education Policy. We look forward for the bright future with the implementation of the New Education Policy for the country. Let me thank the UGC and the Ministry of Education for the most recent support. Just I will fetch for 1 minute and then complete. Over 160 crores of rupees was granted to us for new buildings under regular development and also under expansion under economically weaker section reservations. All the projects are at groundbreaking stage, and soon new world-class infrastructure will be available. Sir, under the Institution of Eminence, we have received support to the tune of 550 crores for the remaining projects and the equipment, and also for the renovation of some of the projects that are there. And to retain the serenity of this campus and also to diversify, we have also decided to develop the new infrastructure towards the eastern side of the campus. So this is a huge campus, sir. We have 2,000 acres of land, and we are in the main campus, and we have developed the south campus towards another side of the city, and we are now planning to use the eastern side of the campus, and which I am going to request you to
lay foundation also today immediately after this building inauguration. I will be requesting Honorable Minister to lay foundation for the East Campus. Today, we are happy that the new annex building for School of Humanities is being inaugurated by our beloved Minister of Education. This building will augment the space available for the School of Humanities to accommodate the Center for English Language Studies and the Department of Sanskrit Studies and other units which could not have better space until now. Our School of Humanities, sir, has a great history and has made outstanding contributions in literature, languages, philosophy, linguistics and translation studies, especially natural language processing, Dalit and Adivasi studies, endangered and mother tongue languages. These are all the focus areas of our School of Humanities. I welcome one and all on this occasion and request the Honorable Minister for Education, Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank ji, to inaugurate Humanities Annex and also lay the foundations for the East Campus to mark the developments of institutions of eminence. It is your baby, institution of eminence, and we are very happy that you will be able to lay a foundation for the East Campus, which will spur the growth of the institution of eminence. And after the inauguration, we will be requesting you to deliver your address, and we will be happy to listen to you, sir. Now, I request Mananiya Mantri ji to first see the video of the building, and then we will go for the inauguration. Video, please. शिक्षा और जीवन को एक दिशा, प्रयोजन और मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से हैदराबाद विश्वविद्यालय में मानविकी संकाय की स्थापना की गई थी। ये विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा संकाय है, जिसमें 13 विभाग और केंद्र हैं। वर्ष 2020 तक इसमें 77 स्थायी शिक्षक और विभिन्न मास्टर्स, एमफिल तथा पीएचडी पाठ्यक्रमों में लगभग 1000 छात्र हैं। पिछले 5 वर्षों में मानविकी संकाय के शिक्षकों ने 164 पुस्तकें और 390 शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। हमारी शिक्षा और शोध सहित सभी गतिविधियों में निहित विचार यह है कि समाज नैतिकता पर बल दिया जाना चाहिए। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह संकाय भाषा, साहित्य, संस्कृति और दर्शन के विविध रूपों और अभिव्यक्तियों को समझने का प्रयास करता है। संकाय द्वारा चलाए जाने वाले पाठ्यक्रमों में भी यही लक्ष्य और सोच परिलक्षित होती है। स्थान के अभाव में वर्ष 2006 के बाद स्थापित 6 विभाग और केंद्र विश्वविद्यालय परिसर में अलग अलग स्थानों पर स्थित थे। इन्हें मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए एवं सभी को एक ही भवन में जगह देने के लिए योजना निधि से मानविकी विस्तार भवन का निर्माण किया गया है। इसमें 3 भाषा प्रयोगशालाएं, 2 संगोष्ठी कक्ष और इनके साथ साथ प्रशासनिक प्रधान और शिक्षकों के लिए 13 विशाल कमरे हैं। Now we request Mananiya Mantri ji to inaugurate the annex building. Yes. Mananiya Mantri ji, kindly inaugurate the building by pressing your button.
you very much for inaugurating the Humanities Next. And I now request you to kindly lay foundation for the East Campus, which will be primarily to show the growth and an institution of eminence. Kindly press the button, sir. Thank you very much, sir. Thank you once again. And this is, as I said in the welcome address, that you were the one who convinced and pushed the QS people to not to leave out University of Hyderabad in the ranking and then pave the way for the institution of eminence. And now you have laid foundation for the East Campus where the IOE developments will take place. Thank you so much. It is such a great coincidence. And now I request you to give your address. Kindly, sir. अभी किशन जी और संजय दोते जी भी दो शब्द बोलेंगे तो अच्छा लगेगा. Yes, sir. किशन जी. Okay. Okay. We have for Sanjay Dotre ji and also for Kishan ji, both of them we have the time slots, sir. Maybe we will request first Kishan ji and then we will Kishan Reddy sir, and then we will request Sanjay ji. उसके बाद आप बोलेंगे सर. Thank you. Kishan Reddy sir, नमस्कार अंडी सर. दयచేసి नमस्कार अंडी. Honorable Minister of Education, Government of India, respected Sri Ramesh Pokhriyal Nishank ji, और Honorable Minister for State Education Sri Sanjay Dotre ji, Vice Chancellor of University of Hyderabad, Professor Apparao garu, Professor Arun Agarwal garu, Rajashekar garu, Sardar Singh garu, V. Krishna garu, senior professors, deans, heads of the department, members of the faculty, CPWD officials, students, guests, and family members of the University of Hyderabad, friends from media, good evening to you all. At the outset, I congratulate the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and Honorable Education Minister, respected Sri Ramesh Pokhriyal ji, for their unstinting efforts in bringing the new education policy after almost 34 years. The policy, which is set to bring about progress and path-breaking changes, has got appreciation from all the sections of the society, irrespective of the ideology, religion, language, and will go to in realizing the vision of the new India, vibrant India. I am indeed very happy to associate myself with the inauguration of the exclusive building for School of Humanities on the campus of Hyderabad Central University. As a member of Parliament from State Capital and as a Union Minister of Government of India from Telangana State, I have feel delighted the way HCU has been registering study progress on every sphere, especially in the area of sciences. I read in the paper
that the Department of Life Sciences, associated with the pharma companies in developing vaccine for COVID-19. I congratulate all those who are all associated with the activity, for it is an important for the universities to raise to the occasion in helping the nation when it is going through a critical time. And Lord, the humanities is going to be coming to at a time when we have a new education policy and there is a emphasis on liberal arts and humanities. One of the other began the establishment of central universities is that the unity is becoming a single center of the knowledge to contribute to the development of the region. I hope the adequate space of humanity, GSU, focus on Telangana arts and crafts and Telangana Telugu pride, its culture and heritage in a manner that such a emphasis would lead the promotion of the culture and create opportunities of local youth. You are aware, Honorable Prime Minister and Honorable Education Minister are keen on promoting research in universities towards the realizing our collective dream of building the new India and building Atmanirbhar Bharat. As a premier university of the nation, Hyderabad Central University must seize this opportunity and must have greater emphasis on path-breaking research to host India at the heart of the global knowledge production. I wish HCU will strive to figure among us the top 100 universities of the world in the years to come. Further powered by the new facility, the Faculty of Humanities should strive towards unleashing new ideas to prove to the world that the new ideas should come from India as well. The concept of Cicero in Greek and Roman civilization refer to understanding of humankind in a better way. We also should be in a position to create such concepts which the world uses that ought to be purpose of humanity. I end by citing Socrates, who said, "Weak minds discuss people, average minds discuss events, great minds discuss ideas." I appeal to all the faculty members of humanities, students, to discuss ideas that make India truly Vishwaguru. I thank you all for the opportunity and assure my help and support in all your future endeavors. Thank you everybody. Both, Dhanyavad, Namaste, Jai Hind. Thank you very much, sir, for your kind words and also for setting us the tone to get into the top 100 in the world ranking, which we are definitely aiming for with the support that we have already received under Institution of Eminence. There is a target in that. We are working in that direction. And thanks also for reassuring the support. You have always been supportive and you have reassured your support for anything that is required for this university. Thank you so much, sir. Thanks for your kind words.
Now I would like to request our Minister of State for Education, Dr. Shri Sanjay Dhotre ji, for his kind words. Sanjay ji, माननीय मंत्री जी, अब आपके चरण. Okay. Okay. Yes, sir. धोत्रे जी, आपका माइक म्यूट हो रखा है. धोत्रे जी, I hope somebody will help मंत्री जी. संजय हमारे यहाँ नहीं है. Everything is okay from our side. I hope some secretary or some technical support will be there for Mantri ji there. I think in few seconds it should be possible now. If somebody from disconnected and they want to reconnect it again, probably we can request Minister to. सर आपका समय तो बहुमूल्य है. आपका ये एड्रेस दे दीजिए और इसके बाद maybe it may be slightly different from protocol. संजय जी से भी हम बाद में पूछेंगे इनका एड्रेस के लिए. Now I request our beloved Minister of Education, our Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank ji, to address all of us on this special occasion. Mantri ji. मेरे साथ जुड़े हमारे सहयोगी शिक्षा राज्य मंत्री आदरणीय संजय धोत्रे जी, मेरे प्रिय और इसी राज्य के बहुत यशस्वी मंत्री गृह राज्य मंत्री प्रिया किशन रेड्डी जी, इस विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर अप्पा राव जी, पीबीसी प्रोफेसर अरुण अग्रवाल जी, पीबीसी बी राजशेखर जी,
श्री पी सरदार सिंह जी, प्रोफेसर वी कृष्णा, डीन, प्रोफेसर्स और डीन्स और संकाय के सभी आचार्यगण, सभी कर्मी, प्रिय छात्र छात्राओं और सभी उपस्थित जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं, सभी का मैं अभिनंदन कर रहा हूँ। मैं विश्वविद्यालय परिवार को इस समय बधाई देने के लिए आपके बीच आया हूँ कि एक तो ये विश्वविद्यालय IOE की श्रेणी में है। अपने आप ही पूरे देश के जहाँ 1000 विश्वविद्यालय हों, 45,000 डिग्री कॉलेज हों, 15 लाख स्कूल हों, 1 करोड़ 9 लाख अध्यापक हों और अमेरिका की आबादी से भी अधिक जहाँ छात्र संख्या हो 33 करोड़, उनमें ये विश्वविद्यालय प्रमुख 20 ऐसे संस्थानों में है जो इस देश की गरिमा को बढ़ाता है, जो विश्व की रैंकिंग पर जाने के लिए IOE के रूप में एक अभियान के रूप में आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए यहाँ के कुलपति और उनके सभी सहयोगियों को, पूरे विश्वविद्यालय परिवार को मैं दोनों एक को बधाई देना चाहता हूँ आज के दिन की, आज के जो परिसर की जो आपके उद्घाटन कर रहे हैं, और शुभकामना देना चाहता हूँ कि आप विश्व के फलक पर हिंदुस्तान का माथा ऊंचा करेंगे। मेरी शुभकामना आप सबको, ढेर सारी बधाई, शुभकामना। मुझे लगता है कि जो विश्वविद्यालय का जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, पीछे के समय से मैं जितनी समीक्षा कर रहा हूँ देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों की हूँ, चाहे IIT हूँ, चाहे IIIT हूँ, आईसर हूँ, सभी का बहुत गहन नीचे तक अध्ययन करने के बाद मुझे आशा होती है कि ये जो हैदराबाद का केंद्रीय विश्वविद्यालय निकट भविष्य में, जो मेरे भारत के, और अभी किशन कह रहा था कि न्यू इंडिया, नया भारत की, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ऐसा भारत जो स्वच्छ भारत हो, स्वस्थ भारत हो, सशक्त भारत हो, समृद्ध भारत हो, जो आत्मनिर्भर भारत हो, श्रेष्ठ भारत हो और एक मजबूत भारत हो। ऐसा भारत, ऐसा सशक्त भारत, ऐसा श्रेष्ठ भारत और क्यों ना हो। मुझे अच्छा लगा जब मैं पढ़ रहा था तो आपने मानवीय विभाग को बहुत सशक्त बनाया है। मैं उनके डीन को, उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि जिस आधार पर मेरा देश पूरे विश्व में विश्व गुरु रहा है और जिसके आधार पर ये तद देश प्रसूतस्य सका सदग्र जर्मना स्वम चरित्रम शिक्षरन पृथ्व्यांतर मानवा, जिस आधार पर तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय, जहाँ पूरी दुनिया का मानव ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी की शिक्षा पाने के लिए, मूल्यों की शिक्षा पाने के लिए आता था, ये वही भारत है जो विश्व गुरु कहलाता भारत है। और आज देश की स्वाधीनता के बाद भले ही गुलामी की थप्पड़ों ने हमको हमारी जड़ों से दूर किया हो, हमको हमारे उस ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान से रोकने की कोशिश की हो, लेकिन ये भारत है, ये धरती है जहाँ से ज्ञान और विज्ञान का उदय हुआ पूरी दुनिया के लिए। और इसलिए आज ये मानवीय विभाग बहुत सशक्त विभाग है, जहाँ एक ओर दर्शन की बात करेगा, दूसरी ओर भाषाओं की बात करेगा, तीसरी ओर प्राचीन जो हमारा वैभव है उसकी बात करेगा। और मैं समझता हूँ कि आज पूरी दुनिया सुश्रुत जो शल्य चिकित्सा का जनक है वो इसी देश में पैदा होता है। यह जो वेदा आयुर्वेद की बात करते हैं, जो जीवन में जो आयु का विज्ञान है, उस आयुर्वेद की जो बात करने वाला चरक ऋषि है वो भी इसी धरती पर पैदा हुआ है चरक संहिता के रूप में। आर्यभट्ट ने यही जन्म लिया है जो श्रेष्ठ दुनिया का ऐसा गणितज्ञ रहा है। श्रेष्ठ वैज्ञानिक भास्कराचार्य ने भी इसी देश में पैदा जन्म लिया है। और मैं समझता हूँ वो चाहे आचार्य कणाद हो, और चाहे वो भाषा वैज्ञानिक पाणिनि हो, और चाहे योग को जो आज पूरी दुनिया में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा मेरा भारत वसुधैव कुटुंब की बात करता है, वसुधा पूरी धरती पर जो भी प्राणी है उसकी रक्षा, सुरक्षा
उसकी गरिमा बढ़े। भारत ने इस मनुष्य के लिए हमेशा मानवतावादी दृष्टिकोण रखा है और इसलिए हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात की है। ये पूरा वसुधा मेरा है। उस व्यक्ति की संरचना, उस व्यक्ति की सुरक्षा, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व की रक्षा, उसकी मानवता की रक्षा, उसकी संवेदनाओं की रक्षा करने का जो शिखर तक का भारत का विजन रहा है, जिसमें अयम निजः परोवेति गणना लघुचित्तम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात, एक और तो पूरी दुनिया को अपना कुटुंब बनाना और दूसरी ओर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की धरती पर जब तक एक भी प्राणी दुखी होगा तब तक मैं सुख का एहसास नहीं कर सकता है। ये हमारी नीति, ये हमारा विजन और इसी विजन को मिशन में उतार करके विविध क्षेत्रों में हम जाएंगे। ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम चारों तरफ प्रगति के शिखर को चूमेंगे। और मेरी शुभकामना है कि जो मैं देख रहा था, अभी देख रहा था कि मानवीय संकाय ने 164 पुस्तकें लिखी हैं वहाँ के शिक्षकों ने और 390 शोध पत्र पत्रिकाएं शोध प्रकाशित हुए हैं उनके। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से इस समय आप वहाँ पर संस्कृत अध्ययन विभाग को कर रहे हैं, आप भाषाओं को पढ़ा रहे हैं, आप जिस तरीके से उस पर अनुसंधान कर रहे हैं, विविध भाषाओं की बात कर रहे हैं, आपने देखी कि नई शिक्षा नीति में जो आप पहले से ही कर रहे हैं उसी चीज को हम और ताकत के साथ देश के लिए लेकर के आए हैं। क्योंकि हम ये समझते हैं कि भाषा का जो भाषा है वो व्यक्ति की अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा अंदर का कारण होता है। इसलिए हम प्रारंभिक भाषा अपनी मातृभाषा में हो, अपनी क्षेत्रीय भाषा में हो, जिस भाषा को बच्चा बोल रहा है उसमें ज्यादा अभिव्यक्ति आती है, अंदर जो उसके छिपा हुआ उसकी प्रतिभा है, उसका विकास है, वो बाहर निकल करके आता है। और भाषा वैसे भी मैं ये समझता हूँ कि हमारे देश के अंदर भारत के संविधान के अनुसूची 8 में 22 भारतीय भाषाएं हैं। तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, गुजराती है, मराठी है, बंगाली है, उर्दू है, संस्कृत है, तमाम हमारी 22 भाषाएं हैं जो अनुसूची 8 में हैं। बहुत खूबसूरत भाषाएं हैं, इनका संरक्षण संवर्धन भी जरूरी है। यूनेस्को ने भी पीछे के दिनों में बड़ी चिंता की है। यूनेस्को ने कहा है कि हिंदुस्तान की हजारों भाषाएं लुप्त हो रही हैं, बोलियां लुप्त हो रही हैं, भाषाएं लुप्त हो रही हैं। और ये हमको चिंता है क्योंकि हमारी भाषा केवल शब्द ज्ञान नहीं है, उसमें अनुसंधान छिपा है, उसमें ज्ञान छिपा है, उसमें दर्शन छिपा है, उसमें तमाम पारंपरिक पौराणिक ऐसी गाथाएं छिपी हुई हैं जो हमको ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान की दिशा में आगे जाने के लिए प्रेरित करती हैं। इस देश में वेद, पुराण, उपनिषद, ये जो इसकी ऋचाएं हैं वो उनका विश्लेषण करने के बाद वो हमको बहुत आगे तक ले जाने की प्रेरणा देती हैं। और इसीलिए अतीत को वर्तमान से जोड़ करके और भविष्य की लिए उनको ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान के क्षेत्र में आगे करते हुए नवाचार के साथ विश्व के शिखर पर जाने का हमारा जो ये अभियान है, उस अभियान में ये विश्वविद्यालय नींव का पत्थर बन करके खड़ा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि आप लोग एक विशिष्ट संस्थान के रूप में एक अपनी मान्यता को अर्जित कर चुके हैं। आप पूरे देश की नजर आप पर है और इसलिए ये संस्था कितने महत्वपूर्ण हो सकती है। मुझे अच्छा लगा आपने संस्कृत की भी बात की है। अंततोगत्वा आज दुनिया के शीर्ष 250 विश्वविद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जा रही है। जर्मन जैसे देश ने अपने देश में 14 विश्वविद्यालय किए हैं, क्योंकि जो पीछे का जो ज्ञान है वो संस्कृत में वो भंडार है। संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है, संस्कृत में वो पुंज है, भंडार है ज्ञान और विज्ञान का। उसको बाहर निकालने की जरूरत है। जब मेरा ये युवा संस्कृत को जानेगा, पढ़ेगा, तभी उसकी ऋचाओं पर, उन चीजों पर नया अनुसंधान करके वो आगे जा सकेगा। आपको मालूम है कि एक अवसर था, एक ऐसा समय था जब देश की सीमाएं हमारी सुरक्षित नहीं थी, जब देश के अंदर खाद्यान्न का संकट था। दो संकटों से उस समय जब पंडित लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, शास्त्री जी के समय इन दोनों संकटों से जब देश गुजर रहा था, उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान का नारा दिया। पूरा देश खड़ा हो गया था और दोनों संकटों का हमने मुकाबला किया था।
जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे। अब सबको मालूम है कि उन्होंने उस समय कहा अब जरूरत है विज्ञान को आगे ले जाने की, और उन्होंने जय विज्ञान का नारा दिया था और परमाणु परीक्षण करके पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को महाशक्ति के रूप में उभारने का एक अवसर तेजी से दिया था। पूरी दुनिया ने इसका लोहा माना था। दुनिया आज भी महसूस करती है। और वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बहुत ही विजनरी हैं, जो बहुत ही विजनरी हैं, जिनका एक एक शब्द अपनी ताकत को लेकर के खड़ा होता है, जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं। और ऐसे लीडरशिप में पूरी दुनिया में उन्होंने तमाम लीडरशिप दी है, चाहे योग के रूप में पूरी दुनिया को उसकी मानवता को बचाने की दृष्टि से योग का सूत्र देकर के आज दुनिया के 199 देश पूरी हिंदुस्तान के उस योग के पीछे खड़े हैं। और चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एक मंच पर खड़ा कर देने का विषय रहा हो, और चाहे वो मौसम परिवर्तन की तमाम चुनौतियां और मानवता की उन चुनौतियों के सामने सारे लोग इकट्ठा होकर के एक नई दिशा में चलने की बात करती हो दुनिया, ये हमारी लीडरशिप है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लीडरशिप दी है पूरी दुनिया को। दुनिया आज भी भरोसे और आशा के साथ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी पर नजर टिकाए है। और हिंदुस्तान भी मेरे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसमें विविध विधाएं, 1000 विश्वविद्यालय, अभी मैंने कहा कि 45,000 डिग्री कॉलेज, अभी 15 लाख से अधिक स्कूल, 1,09,00,000 से अधिक अध्यापक, और यदि देखेंगे तो कुल अमेरिका की जितनी जनसंख्या नहीं है उतनी 33 करोड़ से भी अधिक यहाँ छात्र छात्राएं हैं। क्या नहीं कर सकते हम। ये यंग इंडिया आगे 25 वर्षों तक रहने वाला है। इसलिए मेरे छात्र छात्राओं, आपको नई शिक्षा नीति जो हम लाए हैं, जिसके अभी किशन चर्चा कर रहा था, ऐसी नई शिक्षा नीति जो नए उफान के साथ, भरोसे के साथ, ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के साथ, नवाचार के साथ, प्रौद्योगिकी के साथ और क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने के लिए खुला मैदान लेकर के आई है। आप पर किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, किसी भी विषय को ले सकते हैं। आप विज्ञान के साथ साहित्य ले सकते हैं, आप इंजीनियरिंग के साथ संगीत ले सकते हैं, जो आपका मन करता वो विषय लो, लेकिन उस विषय के राजा बनो। पूरी ताकत के साथ उस विषय में जमीन पर खड़े होकर के आसमान को छूने का मादा खड़ा होना चाहिए। आपको इससे ज्यादा क्या स्वतंत्रता दें। भाषा किसी राज्य पर नहीं थोपी गई है, बल्कि सभी भाषाओं का यदि प्रारंभिक जो शिक्षा है वो अपनी मातृभाषा में करे। जो प्रदेश जितना आगे तक जाना चाहता है लेकर जाए, लेकिन भाषा का कोई बंधन नहीं है। सभी भाषाओं को, देश की सभी 22 की 22 भारतीय भाषाएं हमारे लिए वंदनीय है। उन सभी भाषाओं को हमको जिंदा रखना है, तेजी से बढ़ाना है, विकसित करना है, समृद्ध करना है, सशक्त करना है। और इसलिए जो भाषा का जो आपका अनुवाद का काम चल रहा है, जो भाषा विज्ञान का आपका काम चल रहा है, इसकी जरूरत है। हमारी तमाम जो बातें, मेरी जो तेलुगु है, मेरी जो कन्नड़ है, जो मेरी तमिल है, जो मेरी विभिन्न भाषाएं हैं, संस्कृत है, उर्दू है, सब में बात अपनी अपनी खूबसूरती है। इन खूबसूरती को हम तेजी से आगे बढ़ाएंगे, उसकी ताकत को साथ लेकर के आगे बढ़ना है हमको। और इसलिए मैं समझता हूँ कि जो ये नई शिक्षा नीति हम लेकर के आए हैं अभी, ये पूरा देश में उत्सव का वातावरण है। लोगों को लगता है कुछ होगा। अभी मेरे छात्र छात्राओं के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। यदि परिस्थिति बस कोई बीच में छोड़ करके जाता है तो दोबारा आकर के उसको ज्वाइन कर सकता है। एक डिजिटल लॉकर से हमने बनाया है, और साथ में हमने ऐसा बैंक बनाया है जो क्रेडिट बैंक है। उसके जितने भी क्रेडिट रहेंगे वहां पर जमा रहेंगे। यदि परिस्थिति बस कभी वो 2 वर्ष में छोड़ के जाना चाहता है, ये 1 वर्ष में, 1 वर्ष का उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो वर्ष भी खराब नहीं होगा। 2 वर्ष में जाता है तो 2 वर्ष खराब नहीं होंगे, वो उसको डिप्लोमा मिलेगा। 3 वर्ष में उसको डिग्री मिलेगी, लेकिन वो निराश नहीं होगा और लौट करके वहीं से फिर शुरू करना चाहते हो यदि आप अपनी पढ़ाई, तो आप दोबारा वही क्रेडिट पर जहां आपने छोड़ा है वहां से आप शुरू कर सकते हो। ये खूबसूरती है अपने ये शिक्षा की। ये शिक्षा नीति, ये अंतरराष्ट्रीय फलक की शिक्षा नीति है जो हर क्षेत्र में आपको पूरा मैदान देती है दौड़ने के लिए, खेलने के लिए, करने के लिए, उस पहुंच पर पहुंचने के लिए।
और इसलिए ये जो नई शिक्षा नीति है, पूरा देश जहां उत्साहित है, पूरा देश 99% लोगों में उत्साह और उमंग है, वहीं पूरी दुनिया के लोगों में भी उत्सुकता है। तमाम दुनिया के देशों के एजुकेशन मिनिस्टर हमको संपर्क कर रहे हैं कि सर हम भी हिंदुस्तान की जो ये नई शिक्षा नीति आई है, हम भी अपने देश में ऐसे शिक्षा नीति को लागू करना चाहते हैं। हमने स्टडी इन इंडिया और स्टे इन इंडिया का अभी आह्वान किया है। स्टडी इन इंडिया के तहत पूरी दुनिया के लोग आओ हमारे भारत में, हम जो दे सकते हैं आपको योग दे सकते हैं, हम आपको भाषा दे सकते हैं, हम आपको तमाम ऐसी विधाएं हैं जो केवल और केवल हिंदुस्तान दे सकता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि दुनिया के लोगों में भारत के प्रति आकर्षकता है। एक समय दुनिया का सबसे बड़ा गंतव्य स्थान बन जाएगा ये शिक्षा का। हमने इसीलिए कहा कि जो ज्ञान है, हम ज्ञान में बाहर की फैकल्टी को लाते थे, अब हम ज्ञान प्लस में यहाँ की फैकल्टी को भी विदेशों में लेकर के जाएंगे। हमने स्टे इन इंडिया कहा है। अभी 7.5 लाख से 8 लाख तक छात्र दुनिया में पढ़ने के लिए जाता है हिंदुस्तान का। वो एक वर्ष में लगभग हमारा 1 से लेकर 1.5 लाख करोड़ रुपया दुनिया में चला जाता है। हमारी प्रतिभा भी हमारे हाथ से जाती है और हमारा पैसा भी हमारे हाथ से चला जाता है। और अब दुनिया के शीर्ष 100 देशों को हम आमंत्रित करना चाहते हैं इधर। हम हमारी शर्तों पर वो इधर आएंगे, हमारे भी शीर्ष विश्वविद्यालय हम दुनिया के फलक पर लेकर के जाएंगे, दुनिया में लेकर के जाएंगे। और हम उस छात्र को यही स्टे के लिए इससे अनुरोध कर रहे हैं कि अभी भी हमारी शिक्षा कमजोर नहीं है। यदि कमजोर होती तो अमेरिका की जो शीर्ष संस्थाएं हैं, चाहे गूगल है चाहे माइक्रोसॉफ्ट है, उसके यदि CEO है तो आज भी हमारी धरती से पड़ा हुआ नौजवान वहां लीडरशिप दे रहा है। इसका मतलब हमारी शिक्षा समृद्ध शिक्षा है। हम इसको और तेजी से बढ़ाएंगे और तेजी से आगे लेकर के जाएंगे। और अब तो ये जो नई शिक्षा नीति आएगी, तमाम संभावनाएं, हम एक आयोग बनाएंगे जो एक ही छत के नीचे 3-4 काउंसिल होंगी। वो एक पाठ्यक्रम का काम करेगा, दूसरा क्रियान्वयन का काम करेगा, तो तीसरा प्रशासन का काम करेगा, तो चौथा फाइनेंस का काम करेगा। तो वो मिनटों घंटों के हिसाब से काम होगा, एक ही छत के नीचे होगा, ताकि लोगों को सहज मिले, अच्छी तरीके से लोग उसको आगे बढ़ा सके। मैं ये समझता हूँ कि शोध और अनुसंधान की दिशा में भी अभी जो ये नई शिक्षा नीति के अंदर हम लाए हैं नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसको प्रधानमंत्री जी के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार उसके अध्यक्ष होंगे। और आज एक देश में उत्सव का वातावरण होगा। जिस बात को मैं कह रहा था कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने तब ये नारा दिया था, जय जवान और जय किसान, उसके बाद अटल जी ने जय विज्ञान का नारा दिया था, तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने जय अनुसंधान का नारा दिया है। अब अनुसंधान की जरूरत है, इसलिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना कर रहे हैं। आज भी हम इस पार्क के तहत दुनिया के 127 शीर्ष विश्वविद्यालयों के साथ अनुसंधान कर रहे हैं। हम स्ट्राइड के तहत पारस्परिक अंतर विषय शोधों को कर रहे हैं। हम स्टार्स के तहत वैज्ञानिक शोधों को कर रहे हैं। हम इम्प्रिंट और इम्प्रेस के तहत सामाजिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोध कर रहे हैं। और अब जो ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना होगी इस नई शिक्षा नीति के अनुसार, तब पूरी संस्कृति होगी शोध और अनुसंधान का। क्योंकि जब जब भी मैं इस दिशा में विचार करता हूँ, अध्ययन करता हूँ कि आखिर क्यूएस रैंकिंग में या 10th रैंकिंग में हमारे संस्थान क्यों नहीं उभर करके आते हैं, तो मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं शोध और अनुसंधान की हमें अभी कमी है। इस गैप को हम भरेंगे, हम पेटेंट को भी तेजी से बढ़ाएंगे। हमारे पास प्रतिभा की कमी नहीं है, हमारे पास विजन भी है, हमारे पास मिशन भी है। और इसलिए इस विजन और मिशन को दोनों को जोड़ेंगे। ये नई शिक्षा नीति विजन और मिशन को जोड़ करके एक नया आयाम स्थापित करेगी। मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि पूरे देश के अंदर इस नई शिक्षा नीति को लेकर के एक उत्सव का माहौल जैसा है। छात्र खुश है, उसको लगता है कि उसको पूरी स्वतंत्रता है और हर क्षेत्र में जाने का उसका जो है जहाँ उसका मन होगा, जिसमें वो ज्यादा अपने को साबित कर सकता है। हम स्कूली शिक्षा से वोकेशनल स्ट्रीम लाए हैं। हम व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षा जो शैक्षणिक जो शिक्षा और शिक्षणेतर अन्य गतिविधियां, खेल कूद है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, इन तीनों के बीच जो गैप था उसको हमने खत्म कर दिया।
हम अप्रेंटिस के साथ वोकेशनल लाई हैं 6th क्लास से। हम दुनिया का पहला ऐसा देश होंगे जो 6वीं क्लास से कृत्रिम बुद्धिमत्ता पढ़ाएगा। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो नया हम करने को जा रहे हैं, हम ऑनलाइन, आपको मालूम है कि किस तरीके से मुझे खुशी है कि आपने ऑनलाइन परीक्षाओं को समय पर जो है आप पूरा कर रहे हैं, किया है, और आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। हम स्वयं प्रभा दीक्षा NDL और ये पाठशाला के माध्यम से इसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। हम वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। हमने ये तय किया कि 1 क्लास 1 चैनल, इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री PM ई-विद्या के तहत हम इसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे लगता है आपका विश्वविद्यालय जो भाषा पर भी काम कर रहा है, जो स्वयं के साथ भी काम कर रहा है, हम देश की सभी भाषाओं में सभी पाठ्यक्रमों को किस तरीके से ला सकते हैं ताकि मेरे अंतिम छोर तक के बच्चों को हो जाए। हम लोग स्वयं प्रभा के 32 चैनलों के साथ, यदि जिसके पास स्मार्ट टेलीफोन नहीं है, नेट की सुविधा नहीं है, उस अंतिम छोर के बच्चे को भी हम शिक्षा से वंचित नहीं रखेंगे। हम उस तक भी पहुंचना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि जो स्वयं प्रभा के जो 32 चैनल हैं, इन 32 चैनलों के माध्यम से हम टीवी जो DTH पर होंगे, टाटा स्काई पर होंगे और विभिन्न उस पर होंगे, उसको डिश टीवी पर उसको पाठ्यक्रम देंगे। हम सामुदायिक रेडियो के माध्यम से उसके पास जाएंगे। विभिन्न रास्ते जो भी रास्ते हो सकते हैं, उस अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले बच्चे को भी हम इससे वंचित नहीं करेंगे। इसलिए ये टेक्नोलॉजी को हम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हम लोगों ने नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम गठित कर रहे हैं। हम जिस फोरम को गठित होने के बाद बहुत तेजी से हम बहुत अनुसंधान के साथ इसको आगे लेंगे और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी ये देश दुनिया के शीर्ष पर बढ़ेगा। और इसलिए तमाम, चाहे स्वायत्तता का विषय हो, संस्थाओं को स्वायत्तता देने का हो, चाहे शोध और अनुसंधान का हो, चाहे विषयों में छूट हो लेने की, और चाहे वो डिजिटल लाइब्रेरी की बात हो, चाहे DG की बात हो, DG लॉकर्स की बात हो, और चाहे वो क्रेडिट बैंक की बात हो, बिल्कुल नए सिरे से नए परिवेश में हम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे भरोसा है कि ये विश्वविद्यालय जो स्वयं ही एक उत्कृष्ट संस्थानों के में शुमार हो गया है, चिन्हित हो गया है। अब जिस दिन से ये IOE में चिन्हित हुआ है, तब से दुनिया की नजर यहाँ पर टिकी हुई है। और इसलिए स्वाभाविक ही है, क्यों न टिके। यदि आप IOE हैं और देश का 10 संस्थाओं में एक हैं आप, जो सरकारी 10 संस्थाएं हैं उसमें एक हैं, 10 प्राइवेट संस्थाओं में 10 प्राइवेट और 10 सरकारी 10 टॉप 10 में आप एक हैं पूरे देश के लिए। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये छोटी बात नहीं, ये यहाँ तक की जो यात्रा है आपकी वो बहुत सुखद है। यहाँ तक की जो यात्रा है तभी आप IOE में आए हैं, जबकि निश्चित रूप में यहाँ की फैकल्टी ने, यहाँ के छात्रों ने इस परिवेश को बढ़ाया होगा, आगे बढ़ाया होगा। लेकिन अब अगली जो चुनौती है वो ताकत के साथ, अब नई शिक्षा नीति आने के साथ हम विश्व के टॉप 10 में उसमें कैसे करके आ सकते हैं, ये अब अगली चुनौती है। मुझे भरोसा है जब चुनौती होती है और उसका मुकाबला ताकत के साथ होता है तो वो चुनौती अवसरों में तब्दील हो जाती है। और निश्चित रूप में आप इस चुनौती का मुकाबला करते हुए, और अच्छा परिवेश है, पूरी दुनिया के लोग अब कह रहे हैं हम भारत की शिक्षा नीति को अपनाना चाहते हैं। कुछ तो मिल रहा होगा उनको भारत की शिक्षा नीति में। देश के अंदर उत्सव का वातावरण है। कोई व्यक्ति शायद होगा जिसको यहाँ की समझ में अभी समझ नहीं पाए होंगे, या अभी संवाद हिंसा के कारण कुछ चीजें छूट रही होंगी। लेकिन मुझे भरोसा है जिस दिन वो शिक्षा नीति को बहुत गहराई से पढ़ेंगे, यदि 1% किसी के मन में कोई
शंका होगी तो उसका भी शंका निर्मूल होगी। और इस देश की जो ये नई शिक्षा नीति है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने नए भारत के निर्माण की बात की है, जिन्होंने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और आत्मनिर्भर भारत की बात की है, निश्चित रूप में ये भारत आत्मनिर्भर भारत होगा जब हम प्रौद्योगिकी और अपने वोकेशनल शुरू से ही व्यावसायिक शिक्षा करेंगे, और जब हम उद्योगों के साथ अपना मिल करके पाठ्यक्रम को भी करेंगे, और मेरा छात्र वो पढ़ाई के साथ साथ उस औद्योगिक क्षेत्र में भी साथ साथ काम करता रहेगा, उसका जो कौशल है वो विकसित होता रहेगा। तो एक नए अभिनव प्रयोग के साथ ये आया है। मुझे आपको शुभकामना देना है। किशन जी, आपको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ कि ये इस राज्य का बहुत बड़ा संस्थान है, और मैं उस राज्य के लोगों को भी बधाई देना चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस सामान्य बात नहीं है, इसने अपनी गरिमा को बनाया है, ये आगे बढ़ेगा। भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन सहित सभी ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में ये आगे ये संस्थान एक अभिनव प्रयोग करेगा देश के अंदर, ऐसा मैं भरोसा कर सकता हूँ। और आपने जिस तरीके से ये काम देखा है, मैंने आपके काम को देखा है, और जो लुप्त प्राय जो भाषाएं हैं उन पर भी आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं एक बार जो आज जो परिसरों का लोकार्पण हुआ है, मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय के सारे परिवार को बहुत बधाई देना चाहता हूं, और केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद के इस बड़े विजन के साथ जो अपना स्थान बनाता जा रहा है हैदराबाद विश्वविद्यालय, उसको मैं शुभकामना देना चाहता हूं कि आप अपने मिशन में सफल हों, और पूरी टीम आपके साथ है, क्योंकि VC किसी भी संस्था का केंद्र बिंदु होता है, और कुलपति सबको साथ लेकर के एक लीडरशिप लेकर के आगे बढ़ता है, वो भरोसा दिलाता है अपनी पूरी टीम को, और जब उसका विजन होता है उसकी टीम को उसको मिशन में खपा करके आगे बढ़ते हैं। मुझे भरोसा है कि मेरा हैदराबाद विश्वविद्यालय एक नए आयाम को स्थापित करेगा। मैं आपको एक बार फिर शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो शब्द जो बोला है हमारे मानवीय संकाय विभाग के संकाय के बारे में, और वो लैंग्वेजेस में आपने वो पॉइंट भी टच किए हैं। लैंग्वेजेस सिर्फ लैंग्वेजेस ही नहीं होते हैं, लैंग्वेजेस के साथ जुड़े हुए लिटरेचर में वो बहुत सारे निक्षिप्त होते हैं। वो जो विज्ञान, उसको खोज में हमारे मानवीय संकाय विभाग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और खास करके आपने जो संस्कृत की भाषा बात किए हैं, और संस्कृत स्टडीज में हम आयुर्वेद का भी वो ज्ञान सोर्स में हम आगे बढ़ रहे हैं सर, और लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी हम आगे कंप्यूटर से जोड़ के वो उसको ट्रांसलेशन वगैरह और बहुत सारे चीज वो संस्कृत में भी एडवांस्ड आइटम्स हम कर रहे हैं सर। और आपका अभी तक आपका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा सर, और हम हमारे यूनिवर्सिटी तरफ से हम यही मांगेंगे कि और रिक्वेस्ट करेंगे ये same support, you give more and more support, we will do more and more with your encouragement, and we will definitely live to your expectation and reach to the top in the world as you are expecting as an institution of eminence. Very much thank you, sir, for the support that you have given so far. And now we will have the opportunity, we will try to listen to our Minister of State, Sri Sanjay Dhotre ji. Due to some technical problem, we could not adhere to his words, and we will now request Sir Mantri ji, Minister of State for Education, Sri Sanjay Dhotre ji, आपका भाषण। Thank you. मेरे वरिष्ठ सहयोगी, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन श्री जी किशन रेड्डी जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर श्री अप्पाराव उडिले, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, प्रोफेसर अरुण अग्रवाल, प्रो वाइस चांसलर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, प्रोफेसर बी राजेशेखर,
Pro Vice Chancellor 2, University of Hyderabad, Shri P. Sardar Singh, Registrar, University of Hyderabad, Professor V. Krishna, Dean, School of Humanities, CPWD officials, university officials, all teaching, non-teaching staff, faculty members, dear students, ladies and gentlemen, मैं आप सबकी माफी चाहता हूं और आदरणीय मेरे वरिष्ठ सहयोगी रमेश जी की अनुमति चाहता हूं, क्योंकि उनके बाद में मेरा बोलना ठीक नहीं रहेगा। बोलिए, आप तो हमारे अग्रज हैं, अच्छा सा बोलिए। अंदरिकी नमस्कारम। Thank you, sir. नमस्ते। नमस्कार। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के भवनों के उद्घाटन के लिए आज आपके बीच वर्चुअली उपस्थित होकर मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छी एकेडमिक एंड बेसिक फैसिलिटीज मिले, इस पर हमेशा ध्यान रहना ही चाहिए। और इसी कड़ी में यह नए भवन इस विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस विश्वविद्यालय की क्षमता, परफॉर्मेंस और पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए इसे भारत की चुनिंदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स में शामिल किया गया है। आज यह नए भवनों का उद्घाटन हो गया। मुझे यह बताया गया कि इस नए भवन से स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज अपना कार्य करेगा, साथ ही साथ यहाँ से संस्कृत विभाग भी कार्य करेगा। संस्कृत हमारी धरोहर और विरासत है। यह महान आचार्य पाणिनि और पतंजलि की भाषा है। कवि कुलगुरु कालिदास, भास, भवभूति, कल्लन ऐसे महान साहित्यकारों के काव्य, साहित्य, नाट्य संस्कृत में ही बने हैं। दुनिया के आद्य साहित्य रचना हमारे चारों वेद और उनके साथ साथ हमारे उपनिषद, पुराण, सूत्र, भारतीय दर्शन शास्त्र, आयुर्वेद, योग, चिकित्सा पद्धति, वास्तुकला, धातुशास्त्र, स्थापत्य शास्त्र, गणित, विज्ञान ऐसे अनेकानेक विषयों के प्राचीन और चिरंतन ज्ञान भंडार की चाबी संस्कृत भाषा में छिपी हुई है। संस्कृत में भारत की संस्कृति बसती है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं, भारत के संस्कार और संस्कृति में आत्मनिर्भर भारत की आत्मा बसती है। हमारा आत्मनिर्भर भारत आत्म केंद्रित भारत नहीं है, बल्कि वह वसुधैव कुटुंबकम का मूल मंत्र सारे विश्व को देता है। हमारे आत्मनिर्भर भारत में सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया जैसे विश्व कल्याण की बात है। I am very happy that the new building will be used to have the School of Humanities. The subject of humanities enrich us with the learning of life. The modern industrial world, no doubt, gives stress on science, technology, mathematics, engineering. Yes, these are essentially required to take our country to the League of Developed Nations. But education of humanity subject teach us about life, about our history, about our society, about the classic literature in different languages. Hence, the balance is very much essential, and our new education policy has understood this very clearly. Hence, it mentions about multidisciplinary approach in higher education. It speaks about flexible entry and exit in higher education. Quality education is a hallmark of every advanced culture and bedrock of nation building. Quality higher education is engine of national productivity. To achieve the Atmanirbhar Bharat as envisioned by our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, we must strive to have world-class education rooted in the values and ethos of India, that is Bharat. Given the 21st century requirements, quality higher education must aim to develop good, thoughtful, well-rounded and creative individuals. Education is not just about acquiring bookish knowledge. It is also about acquiring knowledge with the rational thinking, scientific temper. It's also about imbibing the values of empathy, mutual respect, spirit of teamwork and cooperation. It is also about instilling the basic values which our Constitution has given to us.
This will ensure a truly Ek Bharat, Shrestha Bharat. And to achieve this, the national education policy has been brought over under the leadership of our visionary Prime Minister Shri Narendra Modi ji, and with the continuous support and leadership of Honorable Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank ji. It guides us for achieving high quality education rooted in Indianness, yet maintaining the quality of education world class. It has given the much needed flexibility to the higher education system, while introducing the concept of academic credit transfer, flexible entry and exit with a focus towards research and innovation. Though National Research Education Foundation, its multidisciplinary approach in the higher education will give students a choice for selection of subject. It envisions to make our India a global knowledge superpower, and I am sure its effective implementation by our higher education institutions like this university will make this happen in minimum possible time. I once again congratulate all you and extend my best wishes for the bright and glorious future of this university. मैं कुछ निजी बातें भी मैं इसमें शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि हैदराबाद के साथ हमारा एक अलग भावनिक संबंध है, क्योंकि मैं विदर्भ से आता हूं और एक समय में हम भी हैदराबाद स्टेट में थे। आज भी कई हैदराबाद के, तेलंगाना के, आंध्र के जो शब्द है वो मराठी में बोले जाते हैं। और हैदराबाद पुराने समय से एक शिक्षा का बहुत ही बड़ा केंद्र था, क्योंकि हमारे यहाँ के कई लोग भी हैदराबाद में पढ़े हुए हैं और वही परंपरा से अब ये इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस भी बना। हमारे वरिष्ठ मंत्री निशंक जी और किशन रेड्डी जी ने जो एक भावना व्यक्त की कि हमारे देश का तो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जरूर है, लेकिन विश्व का भी एक इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस निश्चित ही ये बनेगा, ऐसी मैं आज शुभकामना देता हूं। और आदरणीय निशंक जी ने उनके बोलने के बाद में भी उनका बहुत बड़ा हृदय है, उन्होंने मुझे अनुमति दी और आप सब लोगों ने मुझे सुना, इसलिए आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। और इसी से मैं मेरे शब्द समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much, sir. Thanks for your kind words for the University of Hyderabad and also for the best wishes that you have given us to become one of the best institutions in the world. And also thank you for kind words about our School of Humanities. Now, I would, before I request Pro Vice Chancellor to Professor Rajshekhar to propose vote of thanks, personally, once again, I would like to take the opportunity to thank our Honorable Minister of Education, our Adaniya Mantri ji, Ramesh Pokhriyal Nishank ji, for all the encouragement and for sticking to the word that he said that he will definitely do the inauguration for this building, and today he has done it, and also for inaugurating our laying foundation for our East Campus. And I'm really thankful to both of you, sir, Sanjay ji, Mantri, Minister for State Education, and for kind words, for joining us, and for giving your blessings. And we continue to seek your blessings for the growth of this university, sir. And of course, finally, our beloved young leader, Sri Kishan Reddy Garu, for all the support he has been giving whenever it is required, and he has been always with us, and he is today with us. And thank you very much, sir, personally on my behalf and on behalf of the university. Now, I will request Professor Rajshekhar, and I also would like to thank all my colleagues here, the Pro Vice Chancellors, the Dean in charge, School of Humanities, Registrar Sardar, all my heads of the departments from Humanities, and the officials from the Computer Center, and Professor in charge for the Engineering Works, Professor K.S. Prasad, and Engineering Division headed by Mr. Dr. Kishore Kumar, the University Engineer, and the CPW officials who are all with us for this particular function.
And I now request Professor Rajshekhar to propose formal vote of thanks. Thank you, sir. A very good evening to all. On behalf of the University of Hyderabad and on my personal behalf, I feel it as an honor to propose vote of thanks to this auspicious inauguration program. We would like to extend our wholehearted thanks to Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank, Honorable Minister of Education, Government of India, for inaugurating the Humanities Annex building and laying the foundation stone for each campus, that is IOE campus. Sir, we are inspired by your message and we will ensure you that University of Hyderabad will definitely meet your expectations and will become world-class university. And also we thank you once again for the confidence and continuous support. We will take forward your dreams about national education policy and all the initiatives, whatever is mentioned in new education policy of University of Hyderabad is planning to execute, and flexible systems, flexible entry, exit, and quality consciousness, and humanities, sciences, engineering, sciences, all other disciplines coming together and offering courses. And definitely, we would like to execute and implement the new education policy, national education policy. Thank you very much, sir, for your kind words and blessings. We would like to thank Sri Sanjay Dhotre, Honorable Minister of State for Education, Government of India, for blessing the occasion and sparing your valuable time, sir, and also inspiring us with your wonderful thoughts about humanities and the University of Hyderabad. I take this opportunity to thank our young and dynamic Honorable Minister of State, Minister of Home Affairs, Government of India, Sri Kishan Reddy Garu, for continuous support and encouraging words about the achievements of University of Hyderabad. And you have been continuously helping us, continuously also appreciating our university wherever you are. We are always grateful to you, sir, for your continuous support, and we wish the same continuous support will be there in future, and we definitely come to you whenever we have a problem. So thank you very much, sir. And we would like to also thank the officials of Ministry of Education and the University Grants Commission for continuous and unconditional support to University of Hyderabad. And I would like to thank our Vice Chancellor, Professor Apparao Poghle, and Pro-Vice Chancellor, Professor Arun Agarwal, Registrar, Sri Sardar Singh, and Professor Krishna, Dean, School of Humanities, Dr. Kishore, University Engineer, Mr. Ashish, our PRO, and the team from CPWD for really helping us and constructing the building without compromising on quality. And our professor in charge, K.S. Prasad, and Dean, heads, faculty members, all officers, non-teaching staff, and students, press and media are really continuously supporting us and also for making this program as a grand success. Finally, I would like to thank my other two colleagues sitting here, Professor Parnasu, Professor Amba Kulkarni, and I would like to thank our Sanjay Kumar Sharma, Director Computer Center, for his and his team for facilitating this online inauguration program. I thank everyone and I thank you, each one of you. Thank you very much. Thank you, sir.